ममता बनर्जी की जनसभा को लेकर पूरे आसनसोल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सभा में जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की कड़ी नजरदारी थी। ममता बनर्जी के लिए भगत सिंह मोड़ से कॉरिडोर बनाया गया था, जिस पर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पोलो ग्राउंड के पूर्वी गेट से ममता बनर्जी का काफिला अंदर घुसा, जबकि अन्यों के लिए पूर्व ग्राउंड के पश्चिमी एवं उत्तरी गेट से एंट्री थी। ममता बनर्जी के मंच की तरफ जाने के लिए चारों ओर से बांस की बैरिकेड की गई थी। सीएम की रैली की वजह से पूरा शहर जाम की समस्या से बेहाल रहा। सीएम के जाने के बाद भी 3 घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ वहाँ बच्चे फंस गए एवं भीषण गर्मी में परेशान दिखे और यहाँ पुलिस की व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। मंच तक जाने के लिए बाहर से 3 गेट बनाए गए थे, एक महिला के लिए, एक वीआईपी के लिए तथा एक साधारण लोगों के लिए। मंच पर ठीक 2 बजे ममता बनर्जी पहुंच गई। मंच पर उपस्थित सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। ममता बनर्जी से पहले सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने वक्तव्य रखे। सबथेके बेशी বলছি ওনাদের লিডারশিপতে, ওনাদের নেতৃত্বতে এখানে এসে আপনারা একবারে রেকর্ড ক্রিয়েট করেছেন। কখনো এরকম হয়নি যেরকম আপনি রেকর্ড ক্রিয়েট করেছেন। এই উপচুনাতে আপনারা সব ভাই গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক, কখনো ভুলতে পারবো না। আমি প্রমিস করেছিলাম এখানে कि আমাদের প্রেস্টিজ নয়, এই মমতাজির প্রেস্টিজ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস্টিজ, তৃণমূল কংগ্রেসের লিডার্স প্রেস্টিজ, ওনাদের ওয়ার্কার্স প্রেস্টিজ, আর সব থেকে বেশি আপনাদের প্রেস্টিজ। আমি সেইটা প্রেস্টিজের রক্ষা করে আমি বললাম যে আমি এইখানে আপনারা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন, আপনার সাপোর্ট, আপনার ব্লেসিংস আপনি আমাকে দিয়েছেন। আমি এইখানেই আছি আর আমি এসে গেছি আসানসোল, নট টু গো ব্যাক। আমি কতবার আপনার সামনে আসছি, প্রত্যেক মান্থ এভরি টাইম আমি আসছি, আপনারা জানেন এইখানে। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले भारत की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, मास लीडर, the great chief minister, honorable chief minister of Bengal, ममता बनर्जी जी को मैं सैल्यूट करने आया हूं। मैं सैल्यूट करने आया हूं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया, निमंत्रण दिया। जी घटक के এখানে 4 बार विधान बाबू के, तपस बाबू के, এত কিং অফ মডারেশন এন্ড কিং অফ ভয়েস, এত পপুলার লিডার নরম বাবুকে। उसके बाद बाबू सुप्रियो ने अपने वक्तव्य रखे। धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। कहो ना प्यार है तुमसे, प्यार है, कहो ना प्यार है तुमसे, प्यार है, कहो ना प्यार है, दीदी से प्यार है। चलो थैंक यू सो मच। बाबू सुप्रियो के पश्चात मंत्री मलय घटक ने अपने वक्तव्य रखे। আমাদের একটা দুঃখ ছিল, এবারে লোকসভা ভোটের সময় ইলেকশন কমিশন মাইক বাজানো বন্ধ করে দিয়েছিল, যে মাইকে কোনো সভা করা যাবে না। আমাদের নেত্রীর কোনো সভা আমরা করতে পারিনি, কিন্তু আজকে তাকে আমরা পেয়েছি। তার আশীর্বাদ আমরা নেব, তার নির্দেশ আমরা নেব এবং আগামী দিনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে চলবে, কিভাবে লড়াই করবে, সেই নির্দেশ আমরা নেব। আমি আসানসোলবাসীকে আমি এইটুকুই বলতে চাই, 2011 আগে 34 বছর আসানসোল শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। আসানসোলের সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছিল। আসানসোলে কোনো উন্নয়ন হতে পারে
নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করব এবং আমরা করব। তাছাড়াও মনে রাখবেন আরেকটা বড় কাজ হচ্ছে। কি হচ্ছে না, তো এখানে আইটি ছেলে মেয়েদের জন্য অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে আইটি পার্কে, আরও হবে। GECL মানে GCL অ্যান্ড এশার গ্রুপ 22,000 কোটি টাকা বিনিয়োগে দুর্গাপুর আসানসোলের চেহারাটা পাল্টে যাবে। এছাড়াও দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে, পানাগড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আরো নতুন করে হচ্ছে, রানীগঞ্জের মঙ্গলপুরেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে তোলা হয়েছে। পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে কিছুদিন আগে 12টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ হয়েছে, তাতেও প্রায় 3,400 কোটি টাকা মতো ইনভেস্ট হয়েছে, সেখানেও 10 লোক চাকরি পাবে। তাছাড়াও বীরের চাকরি আসানসোলের দেশের বৃহত্তম, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি তৈরি হচ্ছে, কর্মসংস্থান হবে 1 লক্ষ লোকে, এখানেও অনেকেই কাজ পাবে। এছাড়া কাজ কবির বন্দর, বানতলা, চর্মশিল্প এগুলো। তাছাড়া একটা কাজ জেনে রাখুন, অমৃতসর ডালি পণ্য করিডর, আমি রেল মিনিস্টার ছিলাম, করে এসেছিলাম। এই করিডর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেট করিডর হচ্ছে। এই করিডর ঝাড়খণ্ড होके रघुनाथपुर देके बांकुड़ा बरजोड़ा पानागढ़ होके डानकुनी तक जाएगा, और इसको 2 साइड में बहुत सारे इंडस्ट्री बनेंगे। हम लोग 2,500 एकड़ जमीन दे दिया इसके लिए पुरुलिया में, और इसमें 72,000 कोटी रुपया इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इसका नाम है जंगल सुंदरी कर्म नगरी। इधर में भी 1 लाख लोगों का ज्यादा कर्म संस्थान होगा। हम 2-1 चाकरी के लिए घूमता नहीं है। बनाया मल्टी सुपर हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया, ट्रॉमा केयर सेंटर हम लोगों ने बनाया। आपको पता है कि काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाया, IIT बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, और ऑन्डल एयरपोर्ट भी हम लोगों ने बनाया। बहुत सारे जगह हम लोगों ने बनाया, और हमारा हाथ में काम है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जैसे ऑन्डल है, जामुरिया है, रानीगंज है, बड़ाबनी है। हम चाहते आप लोगों के लिए घर बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर दिया पैसा, वो लोगों ने कोई मदद नहीं करता है। दो इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। आसनसोल का जो कोयला इंडस्ट्री है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। मेरे को तो एक कथा कहना है, एक बात। आसनसोले देखুন চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা আমি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। ডাস্টবিন আমি নিয়ে ভ্যানিশিং, আমি নিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ফেলতে পারবো না। এটা বিজেপির ডাস্টবিন, বিজেপির ডাস্টবিন বিজেপিকে ক্লিয়ার করতে হবে। আমি বিজেপির ডাস্টবিন ক্লিয়ার করব না। বিজেপির ডাস্টবিন ভ্যানিশিং স্কিমের মতো আপনারা ভ্যানিশ করুন। আজকে সারা বাংলা জুড়ে এইসব চলছে। কি হয়নি আপনাদের এখানে? এমনকি জেনে রাখবেন আবার নতুন করে কি হচ্ছে আসানসোলে। আমি সঞ্চালক মলয় ঘটক থেকে শুরু করে, প্রদীপ মজুমদার থেকে শুরু করে, সাংসদ সুনীল মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি, MICরা, CICরা যারা আছেন, তাদের জন্য আমার অভিনন্দন রইলই। কিন্তু আমার বিশেষ অভিনন্দন যে মানুষটি শুধু জিততেই এখানে আসেনি, জেতার পরেও বারবার আসানসোলে ছুটে এসেছেন। আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভারতবর্ষের একজন গর্ব শত্রুঘ্ন সিনহা এবং তার স্ত্রী পুনম সিনহাকে আমরা প্রত্যেকের হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমাদের অন্তরে সম্মান জানাচ্ছি।
বাবুল সুপ্রিয়, তিনি একদিন আসানসোলের এমএলএ ছিলেন। পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদে এই কর্মী চাই মিউনিসিপ্যালিটিতে, যারা মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। আরে আমার জন্য করে কি হবে? আমি তো কখনো রাত্রে শুয়ে ভাবি, আমি যে ঘরটায় বিছানাটায় শুয়ে আছি, কাল যদি মরে যাই এই ঘরটা কে দায়িত্ব নেবে? মনে রাখবেন, আমরা যারা মানুষ জীবনে জন্মাই, আমরা মানবিক মানুষ। আজ আছি কাল নেই, কে খাবে টাকা? পুঁইশাকের ঝোল খাবো, সোনার তো জল খাবো না। আজকাল তো মেয়েরা সোনার গয়নাও পড়তে চায় না, বাইরে থেকে কিনে কিনে পড়ে। সুতরাং মনে রাখবেন, অনেক বাড়ির মেয়েরা আছে পেলেও নেয় না, অনেক বাড়ির ছেলেরা আছে তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেয়, ভালো হও, সৎ হও, মানুষ হও, মানুষের মতো মানুষ তৈরি করো। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবনা, এটাই চেতনা, এটাই দর্শন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। हावड़ा से दिल्ली जाने वाली कालका मेल चलती ट्रेन में सोमवार की देर रात सफर कर रही दुर्गापुर की नव युवती ने एसएसबी जवान पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया एवं जवान के खिलाफ अंडाल जीआरपी में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर रेल पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत में भेज दिया। घटना के बाद युवती एवं उसके परिजन सख्ते में हैं एवं जवान के इस हरकत के लिए प्रशासन से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर के बेनाचित्ते निवासी युवती कोलकाता में मॉडलिंग के साथ साथ व्यवसाय करती हैं। सोमवार की संध्या युवती कालका मेल से दुर्गापुर अपने घर लौट रही थी। पीड़िता ने बताया कि बीते रात 9:30 बजे हावड़ा से दुर्गापुर लौट रही थी। ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन पहुंचने से पहले मैं ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे के पास खड़ी थी। उसी दौरान बोगी में सफर कर रहे एक सेंट्रल आर्मी के जवान अर्धनग्न स्थिति में बाथरूम में जाने के पहले अचानक मुझे पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। जवान नशे की हालत में धुत था। जवान की हरकत को देख मैं दंग रह गई एवं उसे धक्का देकर शोर मचाने लगी। उसी दौरान ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरकर शोर मचाने लगी। शोर सुनकर प्लेटफॉर्म पर तैनात रेल पुलिस एवं ट्रेन के यात्री उतर गए। यात्रियों को देख जवान बाथरूम में छिप गया। रेल पुलिस ने बाथरूम से जवान को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने आरोप लगाया है कि जवान अपने कुछ सहयोगियों के साथ हावड़ा से सफर शुरू किया था। ट्रेन चलने के दौरान जवान शराब के नशे में हाफ पैंट पहनकर बॉगी में घूम रहा था, जिसे देख यात्रियों ने उसे फटकार भी लगाई थी। उसके बाद जवान फुल पैंट पहनकर फिर अनाप शनाप बकते हुए बोगी में घूम रहा था। ऐसे जवान के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। পেয়েছিলাম 9:50 আমার ট্রেন ছিল কালকা মেলে B1 কোচ ফার্স্ট 01 সিট নাম্বার। তো আমার দুর্গাপুরে নামার টাইম ছিল হচ্ছে 12:15। নামার আগে আমি গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তো নামার জন্য তখন ওই এসএসবির ওই কিছু একটা সেবা বাহিনী হয় পুলিশের, হ্যাঁ কেন্দ্রবাহিনী না এসএসবি, ওনার ডিপার্টমেন্ট 63 ব্যাটালিয়ন উনি আছেন, কিছু ধীরেন কুমার মিশ্র ওনার নাম। উনি খালি গায়ে ছিলেন, মানে 1 ঘন্টা আগে উনি অ্যাকচুয়ালি ডাঙ্গিয়া পরে ঘুরছিলেন গোটা প্ল্যাটফর্মে, মানে স্টেশনে, মানে ট্রেনের ভেতরে। বাট ওনাকে কমপ্লেন আসার পর ওনাকে একটা প্যান্ট পরানো হয়েছিল। তারপর উনি খালি গায়ে ঘুরছিলেন। তো পিছন থেকে উনি আমাকে জড়িয়ে এসে ধরলেন, পিছন দিকে ধরে এসে আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম। তখন টিটি সব বাইরে এলো ওনাকে। তারপর উনি ভয়ে কী করলেন, বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। তারপরে আমাকে লাত ফাত মারছে, ফাটসালি বলছে, মানে কিছু করে একটা ওকে বাঁচাতে হবে বলছে। আমি নেমে যাবো, আমার তখন সেশন চলে এসেছে, আমি নামতে হবে। তখন যিনি আরপিএফ ছিলেন, যিনি অন স্কোয়াড ডিউটিতে ছিলেন ট্রেনের ওপরে, তিনি উঠে পড়ে ওনাকে বাথরুম থেকে বার করলেন। আমার মানে রেকর্ড আমার স্টেটমেন্ট নিলেন। তারপর রাত্রেবেলা আমি এফআইআর লজ করলাম। এখন এসছি, ওনাকে হোল্ড করে রেখেছে। এখন কোর্টে যাওয়া হচ্ছে ওনার নামে কারবাই মানে ইয়ে করতে। হ্যাঁ, ওনারা ফুল ব্যাটালিয়ন ছিলেন একসাথে। ওনার ইনচার্জ আমাকে ফোন করে চেষ্টা করেছিলেন, আমাকে বলছেন ম্যাডাম মদ খেয়ে সব তো হতেই পারে একটু, মানে উনি কথা হচ্ছে উনি ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগের জামা পরে আমাকে এগুলো জাস্টিফিকেশন দিচ্ছেন যে হয় না মদ খেয়ে হয়ে যেতে পারে, তো আপনি একটা কাজ করুন না ম্যাডাম, ছেড়ে দিন না, চাকরি চলে যাবে হ্যান ত্যান। তো বাস, হ্যাঁ না, আমি নেমে গেছি দুর্গাপুরে। যিনি আরপিএফ ছিলেন উনি আমাকে আসানসোলে নামিয়েছেন। তারপর ওকে অন্ডালে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি দুর্গাপুর স্টেশন থেকে অন্ডালে এসেছি। এখন এফআইআর করা হলো? হ্যাঁ, এফআইআর করা হয়েছে। এখন আমরা আসানসোল কোর্টে যাবো ওনার নামে কেস করতে। আরাধনা চ্যাটার্জি। মেয়ের সঙ্গে মানে খুব বাজে একটা ঘটনা। বিকৃত মস্তিষ্কে একজন জওয়ান ছিলেন, ও আকণ্ঠ মদ্যপ ছিলেন।
তো ওর বাজে অনেকক্ষণ থেকেই উনি ইয়ে করেছিলেন। তো দোষ কিন্তু ওনাদের ব্যাটালিয়নের সবারই রয়েছে এই কারণেই, কারণ উনি যখন ভাবে উনি নেকেট অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক আছে, তখন আরও ব্যাটালিয়নের আরও জনের বলা উচিত ছিল প্যাসেঞ্জারের সামনে উনি কেনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা ওনাদের তখন। তারপরে নাকি উনি একজন ও একটা বারমুড়া পড়েছিল খালি গায়ে। তো একটা জওয়ানের তো এইভাবে তার প্রপারলি ড্রেসে থাকা উচিত ছিল। তো যাই হোক, উনি তো বিকৃত মস্তিষ্কে। তারপর আমার মেয়ের যখন দুর্গাপুরে স্টেশনে নামার টাইম হয়ে যায় তখন এই ঘটনাটা ঘটে। খুব বাজেভাবে আমাকে মেয়েকে অ্যাবিউজ করার চেষ্টা করে, মানে খুব বাজেভাবে। যে হ্যাঁ, এফআইআর লঞ্চ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে কাল কোথা থেকে আসছিল? কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে কালকা মেলে। কি চাইছেন? ওর উপযুক্ত শাস্তি হোক, আর ওর শাস্তিতে আরেকজন, আমি এই কারণেই বলছি আপনার সামনে, আরও 10টা মেয়ে যেন সেভ হয় ওর থেকে। ওকে এরকম শাস্তি ওদের হওয়া উচিত। এরকম যারা সমাজে যে বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ রয়েছে তাদের কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাজা হওয়া উচিত। কারণ তাদের থেকে আজ আমার মেয়ে বলে নয়, আমার সমাজ এরকম আমার মতন হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের থেকে এই রকম লোকের থেকে তাদের বাঁচার দরকার। তাই এসব লোকেদের সমাজে চায় না, এটা সব ঘৃণ্যতম মানুষ। কি বলবেন ব্যাটালিয়নে এতজন থাকার পরে একটা কেন্দ্রীয় বাহিনী, কেন্দ্রের দেশের হয়ে এরা কাজ করে? না, সব কেন্দ্রীয় বাহিনী, সব মানুষ, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আছে, সেন্ট্রাল পুলিশ আছে, সব মানুষ এমনি নয়, সব ব্যাটালিয়ন এমনি নয়। ওর মধ্যে একজন পুলিশ কিন্তু ওকে সেভ করে নিয়ে এসছে, এবং আমরা যেখানে এসেছি সব পুলিশরা আমাকে প্রচণ্ড হেল্প করেছে। ও বিকৃত মস্তিষ্কে ব্যাটালিয়নের মধ্যে একজন। হ্যাঁ, ব্যাটালিয়নের একটাই দোষ ছিল যে ওনারা ওই যে ওর বিকৃত মস্তিষ্কে একটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কেন ওনারা তুলে ধরে একটা জায়গায় লক আপ করেননি, এটা ওনাদের ভুল হয়েছে। বাকি ওনাদের আর কোনো দোষ ছিল না। আপনার নাম? সোনা চ্যাটার্জি। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी के कार्य से प्रभावित होकर उनके दीवाने बन जाते हैं। ऐसा ही दुर्गापुर का सिरोजित राय नामक एक युवक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से उन्मुग्ध होकर अपने शरीर के खून से ही मुख्यमंत्री का चित्र बनाकर दीवानगी की हदें पार कर दी हैं। युवक चित्र को मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपने का इच्छुक है। 21 वर्षीय सुरजीत दुर्गापुर के अमराई गांव का निवासी है। सुरजीत दुर्गापुर हाई स्कूल पास करने के बाद इलाके के बच्चों को ड्राइंग सिखाता था। वह बचपन से ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रशंसक है। ममता बनर्जी के विकास कार्यों ने सुरजीत को इतना आकर्षित किया कि वह दीवाना बन गया। मुख्यमंत्री के दुर्गापुर दौरे के बारे में सुनकर सुरजीत अपनी दीवानगी की हदें पार करने की ठानी एवं पैथोलॉजी चिकित्सक के सहयोग से पैथोलॉजी में बैठकर अपने हाथ से खून को सिरिंज से निकालकर मुख्यमंत्री की तस्वीर बना दी। सुरजीत रॉय ने बताया कि वह बुधवार दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री को तस्वीर सौंपना चाहता है। আমি আমার নিজের রক্ত দিয়ে আঁকা একটা ছবি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে চাই। আমি বেশ কিছুদিন আগে হসপিটালে ভর্তি ছিলাম এবং সেখানে পেটে ব্যথার জন্য ভর্তি ছিলাম। সেখানে আমার ব্লাড টেস্ট হয়েছিল এবং সেই ব্লাডকে একটা স্যাম্পল আমি নিয়েছিলাম ডাক্তারদের কাছ থেকে ড্রয়িং করার জন্য, এবং সেটা দিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এঁকেছি এবং সেটা আমি নিয়ে এসেছি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আমি তুলে দিতে চাই। এবং এটি যদি তুলে দিতে পারি খুব ভালো লাগবে। আবার আমি মুখ্যমন্ত্রী ছোটোর থেকে অনেক বড় ফ্যান এবং আমার উন্নয়ন খুব ভালো, খুব ভালোবাসি আমি, তাই এটি আমি নিজের হাতে করেছি এবং এটি আমি তুলে দিই। বলছি এই ধরনের ইচ্ছে কেন জাগলো রক্ত দিয়ে আঁকা? রক্ত দিয়ে আঁকার ইচ্ছেটা হচ্ছে একটা ইউনিক কিছু প্রেজেন্ট করতে চাই। সবাই তো পেন্সিল, তুলি, রং, এসব ওয়াটার কালার এসব দিয়ে আঁকে, আমি ওইসবই আঁকি, কিন্তু আমি নতুন কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম, তাই আমার মাথায় এলো যে রক্ত দিয়ে আঁকি একবার, তাই আঁকলাম। আপনি পেশায় কি করেন? পেশায় আমি একজন চিত্রশিল্পী, আমি পেন্সিল স্কেচ করি আর কিছু জনকে ড্রয়িং। কত বছর ধরে আঁকা শেখাচ্ছেন? বয়স কত আপনার? বয়স 21 বছর। আমি জাস্ট এই 1 থেকে 2 বছর ধরে আমি ড্রয়িং শেখাচ্ছি। হসপিটালে কবে ভর্তি হয়েছিলেন আর কবে থেকে আঁকছেন এই ছবিটা? ছবিটা এঁকেছি আমি কালকে, হসপিটালে 2 দিন আগে ভর্তি হয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে এসেছে জানার পরেই আপনার আগ্রহটা বাড়ল? মুখ্যমন্ত্রী আমি হসপিটালে আমি জানতে পারি যে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুর আসবে, এবং তখনই আমার ইচ্ছাটা জাগে যে আমি এইবার আমি দেবো একটা ছবি। বলছি এই যে রক্ত দিয়ে আঁকা, বাড়ির লোক কতটা তোমাকে সাপোর্ট করেছে এই বিষয়ে? হ্যাঁ, বাড়ির লোক, আমার মা আমাকে পুরোপুরি সাপোর্ট করেছে। আমি যাই করি আমার বাড়ির লোক আমাকে তাতেই সাপোর্ট করে। বলছি মুখ্যমন্ত্রী এটা কিভাবে নেবে তোমার কি মনে হচ্ছে? তোমার নিজের রক্ত দিয়ে আঁকা, সেই বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে নেবে? সেটা আমি ঠিক জানি না যে কীভাবে নেবে, কিন্তু আমি আমার দিক থেকে আমি এটা হাতে তুলে দিতে চাই। যোগাযোগ হয়েছে এখনো পর্যন্ত এটা তুলে দেওয়ার জন্য? কিভাবে যোগাযোগ করবেন? আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে এসেছি। কি নাম? আমার নাম সুরজিৎ রায়। বাড়ি কোথায়? আমরা দুর্গাপুর। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
मंगलवार को आसनसोल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा को लेकर आसनसोल सब डिवीजन में चलने वाली 400 मिनी बसों में 140 बसें सभा में लोगों के लिए चले जाने से यात्रियों को भारी फजीहत हुई। आसनसोल सब डिवीजन मिनी बस एसोसिएशन के उप सचिव उत्तम रक्षित ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा को लेकर 140 बसें लोगों को ले जाने के लिए चली गई। वहीं अधिकांश बस कर्मी INTT-UC के सदस्य हैं, जिसके कारण भी वह लोग भी इस सभा में शामिल होने के लिए चले गए, जिससे भी बसें कम चली। हालांकि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री की सभा के कारण बसों का टाइम टेबल से चले जाने के बजाय जो बस जितनी जल्दी ट्रिप करके आएगी वह दोबारा ट्रिप करेगी। बस कम चलने से टोटो चालकों की मनमानी रही। बसें न मिलने के कारण काफी संख्या में लोग पैदल चलते नजर आए। मुख्यमंत्री आसानसोलेर मध्य एक सभा करছেন, এটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তো আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের যে সমস্ত টিএনসি কর্মীরা আছেন বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিকে গাড়ি সমস্ত নিয়েছেন এবং INTTC যেহেতু আমাদের INTTCর স্টাফ সমস্ত স্টাফ INTTC তারাও যোগদানের একটা ব্যাপার আছে, সেই জন্য এখানে কত বাস রয়েছে, কত বাস আজকে বুক করা হয়েছে? বাস তো বুকের তো কোনো এরকম ওয়ার্ড ভিত্তিক করা আছে, সমস্ত কিছু যে যার ইয়ে থেকে নিয়েছে তারা যতটা ভাড়া দিয়েছে ভাড়া দিয়ে পরে নিয়ে গেছে এখানে, ঠিক আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যায় আমাদের যদি এখন বলতে পারি তো কিছু গাড়ি চলছে, হ্যাঁ, আর কিছু গাড়ি ইয়ে আছে। কত রয়েছে যদি একটু পরিমাণটা আমাদের আসানসোলের মধ্যে 400 গাড়ি 410টা গাড়ি চলে মিনি বাস, তার মধ্যে 140টা গাড়ির মতো গেছে। মানে বাসে তো নিত্যযাত্রী দেখছি ব্যাপক দুর্ভোগে রয়েছেন, আপনারা কোনো কি বিকল্প ব্যবস্থা করছেন? বিকল্প ব্যবস্থা বলতে আমাদের যে সংখ্যক গাড়িগুলো আছে তাদেরকে আজকে আমরা কোনো টাইম টেবিলের মধ্যে রাখিনি, তারা যত সম্ভব পিক করে প্যাসেঞ্জারটাকে শেষ করে। আপনার নামটা? আমার নাম उत्तम रक्षित, असिस्टेंट सेक्रेटरी आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत एगरा ग्राम पंचायत के नारायणपुरी पाथुड़िया पाड़ा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इस विषय को ध्यान में रखते हुए रानीगंज पंचायत समिति की ओर से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को रानीगंज के DBTC अनुपम बेरा तथा एगरा ग्राम पंचायत प्रधान रीना दास ने किया। 12 लाख रुपए की लागत से बनाए गए उस स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा और मातृत्व स्वास्थ्य सेवा की जाएगी। पंचायत प्रमुख व चिकित्सक ने कहा कि भविष्य में और अधिक सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। AANM नर्स प्रतिमा मंडल छुट्टियों के दिन को छोड़कर हर दिन निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध रहेंगी। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটা গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়াও এখানকার এলাকাবাসী নারায়ণপুর এলাকাবাসীর খুব চাহিদা ছিল, তাদের হেলথ সেন্টার ছিল 2-3 কিলোমিটার দূরে, সেখানে যেতে ওদের অসুবিধা হতো, তো ওদের সুবিধা কথা ভেবে এখানে করা হয়েছে এটা। তো এখানে যারা মানে একদম নিরিপার্সন আছে, এমনি সবাই স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারবেন, বাচ্চা মা এখানে ওরা পরিষেবা পাবেন। আর এইখানে খুব ভালো হয়েছে, আরও ভবিষ্যতে যেন আরও খুব ভালো হয় সেভাবে আমি চেষ্টা করব। এবং যে ম্যাম সেকেন্ড নেম ফার্স্ট নেম আছেন ডাক্তারবাবু আছেন, ওনারা তো রয়ে আসবেন। আপনার নামটা? আমার নাম রিনা দাস, এগরা গ্রাম পঞ্চায়েত রানীগঞ্জ BPSC থেকে। ইনি হচ্ছেন আমাদের সাবসেন্টারের দিদি প্রতিমা মণ্ডল, ফার্স্ট এনএম। আজকে এই এলাকায় একটি এই সাবসেন্টারের উদ্বোধন হলো এবং এটা ভবিষ্যতে হয়তো SSK হয়ে যাবে। তো আমাদের এখান থেকে এই এলাকা থেকে যে সব থেকে কাছের যে সাবসেন্টার আছে ওটা 2-3 কিলোমিটার দূরে। তো এখানকার যারা লোকাল মানুষ তাদের কিন্তু খুব অসুবিধা হয়। আমাদের সাবসেন্টারগুলো যেগুলো কাজ মেনলি সেগুলো হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম বাচ্চাদের, তারপর আপনার এখন যেগুলো নতুন হচ্ছে আপনার NCD যে ক্লিনিকগুলো চলে, মানে প্রেসার সুগার এই সমস্ত রোগের কিন্তু বেসিক ট্রিটমেন্টগুলো আমাদের এখান থেকে প্রোভাইড করা হয়। তো বাচ্চা ছেলেদেরকে মায়েরা কোলে নিয়ে 2-2.5 কিলোমিটার দূরে গিয়ে টিকাকরণ করার জন্য খুব অসুবিধাজনক একটা পরিস্থিতি, মানে ওয়েদার সবসময় সুইটেবল থাকে না। তো এই এলাকায় যখন একটা সাবসেন্টার উদ্বোধন হয়েছে, আশা করছি ভবিষ্যতে এই এলাকার মানুষের জন্য এটা খুবই একটা মানে উপকারজনক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম ডক্টর অনুপম বর, রানীগঞ্জ।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के उर्दू विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय उर्दू अफसाने में तनीसी सजनत था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर नजमा रहमानी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बदलते समय के साथ साथ उपभोक्तावादी समाज का हिस्सा बन रही हैं। महिलाओं को बाहरी परिवेश में कार्य करने की अनुमति बहुत कम दी जाती है। समाज के पुरुष उन्हें घर की रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर समाज में कार्य करने का अधिकार रखती हैं, लेकिन उन्हें यह मौका काफी कम मिलता है। वहीं इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद तौकीर आलम ने कहा कि वर्तमान समय की मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे हैं, परंतु समाज में आज भी उन्हें उपेक्षित रखा जा रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज वर्तमान समय की मुस्लिम महिलाएं एवं छात्र प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहराएं। इस अवसर पर रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर छवि देव, उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर फारूक आजमी, हुगली महसीन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओमार गाजली, डॉक्टर रेशमा खातून, इसके अलावा पश्चिम बर्दवान जिला के विभिन्न कॉलेजों की उर्दू विभागाध्यक्ष वक्ताओं के रूप में उपस्थित थी। क्या होता है, उसकी जबान क्या होती है। मसलन इस्मत का अफसाना चौथी का जोड़ा अगर आप पढ़ें, इस इस्मत को अपने निसाई लहजे के लिए, अपनी बगावत के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन उनके यहाँ जो औरतों का लहजा है, उस लहजे के लिए इस्मत को सराहा गया था। मौज़ूआत के लिए उन्हें मातूब किया गया और लहजे के लिए उन्हें सराहा गया। ये तो बहुत बड़े कंट्रडिक्शन इस्मत के साथ हमें दिखाई देती है। छोटी सी मिसाल जुमले की मैं आपको दे देती हूँ। कोई कवायद नहीं है, बशर्ते कि वो रानी लगे, उसके फैसलों को बराबर की अहमियत दी जाए। उसको मैं एक बहुत बोल्ड जुमला कहना चाहती हूँ। दरअसल जो की नोट की बात है, अफसाने में तानीसियत जो आई उसकी बुनियादें कहाँ हैं। मैं उन बुनियादों पे बात कर रही हूँ। ये कह देना बहुत आसान है कि तानीसियत की तहरीक खत्म हो गई। औरत के जिस्म के साथ इज्जत का तस्वुर जोड़ दिया गया। क्यों साहब, मर्द के जिस्म में की कोई इज्जत नहीं है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे और आपके सामने कि मर्द ने औरत के जिस्म के साथ इज्जत के तस्वुर को जोड़ा और ये कहा कि ये हमारे घर की इज्जत है। उसका किरदार, उसका बिहेवियर, वो जिंदगी कैसे जीना चाहती है, ये सब कुछ उसके जिस्म के साथ जोड़ दिया तो वो जिस्म एक कॉमोडिटी हो गया, वो जिस्म एक चीज हो गया। आबरू तो मर्द और औरत दोनों की है। फिर ये कैसे हुआ कि वो सिर्फ औरत की रह गई? और क्योंकि वो आबरू है इसलिए उसे घर में रहना है। क्योंकि वो आबरू है इसलिए दुश्मन ने जहाँ जहाँ फतवाहत की, जहाँ जहाँ मुल्कों को लूटा, कौमों को, आज भी राइट्स होते हैं, हंगामे होते हैं कौमों के दरमियान, मजहबों की वजह से, जबानों की वजह से, बहुत कुछ हुआ है। वहाँ औरत की इस्मत दरी की बुनियाद ये बनी कि ये दूसरे की इज्जत है, हमें उस इज्जत को खत्म करना है, इसलिए हम रेप करेंगे। सुकूते, मैं बंगाल में खड़ी हूँ, सुकूते ढाका तो हमने बहुत पढ़ा। वहाँ इस बुनियाद पे औरतों की इस्मत दरी की गई कि उनकी जबान कुछ और है, बंगाल की भी और उर्दू रूमीन जो बिहार पॉपुलेशन थी उनकी भी। तो आपने इज्जत का तस्वुर मर्द से उठा के औरत पे जिम्मेदारी डाल दी कि तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत बचानी है। मेरी इज्जत इस बात से है कि मैं अपने बड़ों से कैसे बिहेव करती हूँ। मेरी इज्जत इस बात से होगी कि मैं अपने साथियों के साथ कैसे पेश आती हूँ। मेरी इज्जत इस बात से होगी कि मैं अपने घर को, अपने समाज को कैसे संभालती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे जिस्म को एंक्रोच करना चाहता है या कर लेता है, उसमें मैं बेआबरू कैसे होती हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे आज तक कोई नहीं दे पाया। इसीलिए कितने वाक़यात इस्मत तरीके छुपा दिए गए कि हमारे घर की इज्जत खराब होगी। अगर ये वाक़या सामने चला जाएगा, हमारी बेटी का या बहन का, बच्ची का रेप हो गया, ये अगर समाज को पता चल गया तो
हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये वही तस्वुर है जो इज्जत के साथ जोड़ा गया। अरे मेरे घर में चोरी हुई, मैं तो चिल्ला के कहूंगी कि मेरे घर में चोरी की इस आदमी ने की, मेरे जिस्म की चोरी करने की कोशिश की इस आदमी ने डाका डाला, इसे सजा मिलनी चाहिए। हमें कहीं दबा दिया गया, इसीलिए वो दबी हुई चीजें, वो घुटन, बहुत लोकल गीत जब हम सुनते थे, मैं तो काबुल तेरे पिंजरे की मैना। अरे मैं पिंजरे की मैना नहीं हूँ, मैं आंगन की गैया नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता वजूद हूँ जैसे दूसरे तमाम लोग हैं। मुझे उसके साथ कबूल कीजिए। इस ख्वाहिश ने फेमिनिज्म की तहरीक को यूरोप में 17वीं और 18वीं सदी में शुरू किया। बांटना शुरू किया। और ये भी बता दूं मैं कि जिस जमाने में ये महजब समाज नहीं था, बच्चे पर माँ का हक होता था। तो ये कहा गया कि तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त जो औरत को हुई, जो सबसे बड़ी डिफीट है, वो उसके राइट टू मदरहुड का ओवरथ्रो कर देना है, उसे छीन लेना है उन सारे हुकूक का जो माँ होने की हैसियत से उसे बच्चे पे हासिल थे। और वहाँ से शुरू होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रिलिनियन सोसाइटी, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जायदाद आ गई, उससे जुड़ी हुई ज़मीनें आ गई। अब ज़मीन का वारिस अगर बच्चा है और वो माँ का है तो औरत को मिल जाएगी सारी ज़मीन। तो बेहतर यह है कि उससे वो हक छीन लिया जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर में, अच्छा ठीक है तुम घर में काम कर लो, मुझे एतराज़ नहीं है, मैं भी घर में काम करती हूँ, यहाँ बैठे बहुत से लोग लड़कियाँ घर में काम करती होंगी। मेरा एतराज़ वहाँ से शुरू होता है जब मेरे उस काम को एक तरफ डाल दिया जाता है। जीडीपी में अगर मैं घर में खाना पका रही हूँ तो मेरा तो जीरो है कंट्रीब्यूशन। ये क़यादत की थी, कैसे भूल गए हम लोग। हमने जब ये कहा कि औरत तो घर के अंदर रहेगी तो हमने हज़रत आयशा को भुला दिया, हमने उस पहले निसाई मदरसे को बुला दिया जिसे हज़रत आयशा ने अरब में कायम किया था। फिर हमने राबिया बसरी को भी बुला दिया जो सूफी थी। हमने वो सब कुछ मर्दों के नाम कर दिया। हिंदुस्तान की तरफ आए तो हमने गार्गी को बुला दिया जिसने शंकराचार्य से शायद शंकराचार्य से पूरी बहस की थी। तो इन सिर्फ माजी में सिर्फ मर्दों के पास था, औरतों के पास नहीं था। इस बात को की तरदीद इन्हीं 2-3 मिसालों से होती है, हिंदुस्तान में भी और अरब में भी, आप जहाँ चले जाएं। उसके बाद सो कॉल्ड तबका आलिया, इलीट क्लास, तारीख तो उन्हीं की लिखी गई, अब आपकी तारीख तो कभी लिखी नहीं गई। मेरी और आपकी तारीख ना पहले कभी लिखी गई ना आगे लिखी जाएगी, क्योंकि तारीखें शाहों ने लिखवाई, तारीखें हमेशा इक़्तिदार में बैठे लोगों ने लिखवाई। आज भी वही हो रहा है। जब इक़्तिदार में कुछ और थे, तारीखें कुछ और थी। आज इक़्तिदार में कुछ और है, तारीखें रीराइट की जा रही हैं, आप हम जानते हैं। लेकिन उन तारीखों में भी जो सो कॉल्ड एलीट क्लास की थी, हमें याद रखना चाहिए कि रज़िया सुल्तान इसी हिंदुस्तान में थी। हमें याद रखना चाहिए कि लक्ष्मीबाई का जिक्र तो अभी हो गया, हज़रत महल भी इसी हिंदुस्तान में थी, उन्होंने औरतों की फौज बनाई थी। तो वो औरतें तो शायद मेरे और आपके दरमियान से निकली होंगी जिनका जिक्र तारीख में नहीं है। तो क्या वो औरतें इस कदर मुक़य्यद थी अपने घरों में? यकीनन नहीं थी। लड़ाई का हुनर जानती थी, इसलिए मौजूद थी वहाँ। वो फौजें बनाई नहीं तो उनकी तरबियत भी हुई थी। लेकिन वो सारी तारीखें हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते गए और शायद उससे भी पहले की तारीखें हम भूलते गए। ऐसा क्यों हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कबलस तारीख से पहले की भी एक तारीख रही होगी जो अब हम नहीं जानते, जिसे हम तसव्वुर करते हैं कि ऐसा रहा, लिखी गई तारीख से पहले की तारीख, माक़बल तारीख। वो क्या है?
ठीक, उसमें बसने वाले चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये डाइवर्सिटी की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक, इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, औरत और मर्द दो डाइवर्स सिंफें हैं उन असनाफ में। और अब एक तीसरी सिंफ जिसे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, LGBT, जिसे हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उसमें भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं और वो अब काबिल कबूल है। किसी ज़माने में गुनाह समझा जाता था, लेकिन अब काबिल कबूल है। ये वक्त नहीं है कि मैं उस बात के यहाँ कुछ और कहूँ, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी की शक्लें हैं ये, औरत मर्द, औरत और मर्द के अलावा एक तीसरी इंसानों के दरमियान एक तीसरी दर्जा बंदी जिसे अभी हालिया बरसों में शर्फ कबूलियत हासिल हुआ। फिर औरतों के दरमियान और मर्दों के दरमियान डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। मैं डाइवर्सिटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि आजकल कुछ लोग सब कुछ एक ही रंग में रंग लेना चाहते हैं। बहुत देर तक आप समंदर नहीं देख सकते, बहुत देर तक आप नीला आसमान भी नहीं देख सकते, बहुत देर तक आप रेगिस्तान नहीं देख सकते। आपको तो आसमान पे बादल चाहिए, आपको तो समंदर में तलातुम भी चाहिए और उसकी पुरसुकून लहरें भी चाहिए, आपको तो रेगिस्तान की रात की ठंडक भी चाहिए और दिन की तपिश भी चाहिए। तभी आप इस दुनिया को रहने के लायक बनाते और समझते हैं। तो ये डाइवर्सिटी असनाफ जो सिंफें हैं, औरत और मर्द, इनके दरमियान भी हम वी शुड सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी। अगर कोई औरत बागी है तो उसे समाज के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। अगर कोई औरत ये कहती है कि मैं घर में बैठ के काम करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती घर के बाहर, वी शुड सेलिब्रेट दिस, वी शुड रिस्पेक्ट दिस। हमें वो एहतराम ज़रूरी है। यहाँ बेशतर लड़कियाँ एक हिजाब में हैं, मेरे लिए काबिल कबूल है, हालांकि मैं हिजाब में नहीं हूँ। आपकी प्रिंसिपल यहाँ बैठी हूँ, उन्होंने बिंदी लगाई है, मेरे लिए काबिल कबूल है। अभी टॉकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही और प्रिंसिपल साहिबा जब बोल रही थी तो मेरे कुछ जवाब हैरानी थी मुझमें, जिस अंदाज से वो उर्दू के लफ्ज़ों की अदायगी कर रही थी। और टॉकी साहब ने उससे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो उर्दू के तालिब इल्मों से और उर्दू की तालिबात से उर्दू में बोलें। बिल्कुल, मैं उसमें इजाफा करना चाहती हूँ। उर्दू की तालिबात और उर्दू बोलने वाले लोग भी जब प्रिंसिपल साहिबा से बात करें तो वो बंगाली में बात करें। ये है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। सिर्फ मेरा डोमिनेंस क्यों हो? मैं क्यों चाहूँ कि सिर्फ मेरी ज़बान बोली जाए और जो बंगाली बोलने वाला है वो भी उर्दू बोले? मैं उस उर्दू के साथ बंगाली क्यों ना बोलूँ? तो ये जो सेंस ऑफ डोमिनेंस है, तसल्लुत और गलबा, अपना दूसरों पे साबित करना, यही बुनियाद बनी है औरत और मर्द के दरमियान फ़र्क के लिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बात को अदब की तरफ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।